Good morning, student. As you know that we have started our topic syntax. In my previous video lecture, I have explained what is the meaning of syntax. As you know, in general, in common meaning, we can say now syntax means correction of sentence. Basically, the correction is related with the structure and phrase and rules of the sentence. Okay. Now, as far as the noun is concerned, this is the first unit of your syntax. As you know that in syntax, we are going to study about all the parts of speech including articles. Okay, student? So, this noun is the first unit of your syntax, and you know very well, and I have also explained what is the definition of noun, kinds of noun, and now we are going to discuss the rules related with the correction of noun. First part of syntax of noun was explained in my previous video lecture, and rules were explained very clearly. In this video lecture, student, we are going to explain the rules related with possessive case, as this one is the second part of your syntax of noun. So, first of all, we will discuss about case. What is case? You know, the student in Hindi we call it कारक, है ना? कारक आपको संस्कृत में भी बताया गया होगा, हिंदी में भी. तो case means कारक, and here in English, case means a relation in which a noun stands to some other nouns, है ना? A relation, एक रिश्ता in which noun, जो noun बनाता है some other words, अपने सेंटेंस में आए हुए अदर वर्ड्स के साथ में. मीन्स टू से the relation of noun with the other words given in the sentence, that is called case. Okay, student, right? There are four kinds of case. First one is nominative case. Okay, what is first is nominative case. Nominative case, you know student, nominative case means subjective case, where your noun or pronoun stands as a subject in the sentence. That's why this is the reason that we call it subjective case. इसे हम subjective case भी कहते हैं, because noun or pronoun stand here as a subject. And now second one is objective case. Objective case, as you know, this is made with the word object. Object, you know, the where noun or pronoun stand as an object, works as an object. Object, you know very well, the result of the work done by the subject. तो ये जो object है, that is stand in the form of noun and pronoun, that is called objective case. Now third one is possessive. Third and main case is possessive case. Possessive case means when a noun shows its relation with another noun. In the sentence, your noun or pronoun that stand as a subject, what is the relation of that subject noun with the other word in the given sentence? That is possessive case. यानी एक noun का sentence में आए दूसरे noun पे जो possession show करता है, कब्जा, possession show करता है, that is called possessive case. So student, and last one is vocative case. Fourth one is vocative case. Vocative case means addressing case, sambodhan. Whenever we address any noun or pronoun, that is in the form of vocative case. Boys come here. Here boys is in form of vocative. Vocative case में students just do your work. Students is in vocative case. जब हम किसी को संबोधित करते हैं, कॉल करते हैं नाउन pronoun को, that is in the form of vocative case. And the most important case is your possessive case. Okay, possessive case. This is your main topic, possessive case. Possessive case is shown in the symbol of apostrophe s, which means of. Right? Apostrophe s, which means of. ये apostrophe मार्क है possessive case का, और of इसका meaning है. Okay? Now we will discuss the rules, where and how we are going to use our marks, means apostrophe s, and where we are going to use of.
The first and foremost rule related with possessive case is that we use apostrophe s with living beings. Mohan's book, Shyam's house, Anita's doll, Anita apostrophe s doll. Okay. So student, we use apostrophe s with the living beings. जीवधारियों सजीव के साथ हम ऑफ यानी का की इंग्लिश बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं. दैट शोज पोजेशन ऑफ नाउन, है ना. किरण's डॉल, तो किरण की डॉल यानी डॉल पर किसका पोजेशन है, गुड़िया पर किसका पोजेशन है, किरण का, बिकॉज वो किरण की डॉल. दैट्स व्हाई वी यूज हियर अपॉस्ट्रोफी एस. ओके. एंड वी यूज ऑफ विद नॉन लिविंग बीइंग्स. नॉन लिविंग बीइंग के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं किसकी इंग्लिश के लिए, का, की या के की इंग्लिश बनाने. possession show, right? But in some exceptional case we are going to use apostrophe s with non-living beings. What are the conditions? First of all, we use apostrophe s with personified object. Personification, मानवीकरण. When we are going to use the non-living beings, non-living things, non-living beings as living beings. When we consider non-living beings as living beings, then we use apostrophe s with the things. जब हम उसको सजीव मान लेते हैं तो सजीव के वजह से हम उसके साथ apostrophe s का यूज करते हैं. Okay. Now the other rules, you are never going to use double apostrophe s. Okay. Ram's sister's house, ठीक है, राम की बहन का घर. This is wrong. What will be the correct form? The house of Ram's sisters. Means to say, whenever we need double apostrophe s, we have to take help of for the first term, and in second term we use apostrophe s. Okay, student, you are never going to use double apostrophe s. You have to take help of the first term, and finally in the second term apostrophe s with the noun. ठीक है. अब ये आपका करेक्ट फॉर्म है, the house of Ram's sister. वैसे भी house is non-living being and Ram is living being. Okay. Just like you are not going to use the double apostrophe s, so let it be clear to you that in some conditions we use double apostrophe s. मतलब डबल apostrophe s का यूज नहीं करना है ना, उसके लिए ऑफ लगाना है. बट इन सम कंडीशन you have to apply double apostrophe s, where when two nouns are added with some conjunction just like and, but, and both noun shows the possession of the same thing, then we use single apostrophe s with the another noun, second noun. जैसे क्योंकि ये एक ही अधिकार दिखाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल Ram's and Shyam's school is very close. Now the position on the school related with Ram and Shyam is same. मतलब स्कूल एक ही है, उस पर राम का भी पोजीशन है और श्याम का भी पोजीशन है. So we are going to use only single apostrophe s, and that will be kept with the second noun. हमें जब एंड या बट से जो भी कंजक्शन से जब हम डबल नाउन या प्रोनाउन को ऐड करते हैं तो हमारा एपोस्ट्रोफी एस सिंगल वाले सेकंड वाले नाउन के साथ ऐड होता है, एंड दैट शोज द पोजीशन ऑफ द सेम थिंग, सेम पर्सन, सेम प्लेस, सेम थिंग रिलेटेड विद द बोथ द नाउन. जो दोनों नाउन हैं उनका पोजीशन उस चीज पर बराबर का है. ठीक. बट इफ वी वांट टू क्लियर the position of both the nouns on the things, then we are going to use double apostrophe s. Now, Ram's and Shyam's houses are very very far. राम और श्याम के घर बहुत दूर दूर हैं. ठीक. Now you have to apply apostrophe s with both the noun, with Ram and with Shyam both. Ram's apostrophe s, Shyam apostrophe s. ना हाउसेस आर वेरी फार, उनके घर बड़े दूर दूर. तो
in this situation, when we are going to show that the possession on the thing, on the person, on the place is related with both the nouns, दोनों nouns are related है, different, then we are going to apply apostrophe s with both the nouns. But if the possession on the person, place or thing of both the noun is same, then we are going to use only single apostrophe s, and that will be put with the second noun. Is it clear to you? Okay, student. Now next rule. As you know that you are going to apply single apostrophe s with only living beings, but there are some other things, other conditions where you are going to use with apostrophe s, just like personified things के संग apostrophe s लगा रहे हैं, nature's law, है nature's law and जो है fortune's favor, a duty's call, at death's door, ठीक है, these things where we are going to personify the things, that's why we use apostrophe s with the non-living beings. In the same way, the noun which shows time, space and weight. Time, space and weight. With these nouns, we are going to use apostrophe s. Time बताने वाले, weight बताने वाले और space बताने वाले nouns के संग हम apostrophe s का use करते हैं. Just like a day's march, a 3 days leave, a 3 days leave. A 3 days leave. So we have put here apostrophe, mark of apostrophe, not s, because s is already given. A 3 days leave, 3 दिन की छुट्टी. A meter's length, a pound's weight, a day's march. These are the example that shows that we put mark of apostrophe without s with the things, with the noun that shows time, space and weight. And next important thing, student, the noun which produce hissing sounds. The noun which produce hissing sound, they already carry cs, the sound of s. In such type of noun, we put only mark of apostrophe without s to make the meaning of to convert them in possessive case. उनका possessive case बनाने के लिए हमें केवल apostrophe का mark लगाना है, s नहीं लगाना, because already missing sound जो है that is given to produce the sound of s. Okay. So the student, in the same way, the nouns which are put in plural form and they carry s with them, है ना, उनका plural कैसे बनाया गया, उनमें s जोड़ करके, तो already they are added with the s. That's why you have to only put mark of apostrophe without s. Boys hostel, girls hostel, है ना, girls toilet, है ना, तो they already carry s. That's because they are transferred into plural form. तो ऑलरेडी s लगा हुआ है, अब आपको केवल apostrophe का मार्क रखना है without s to make them in possessive case. But in some noun which are made plural by changing the vowel, by changing their vowel, ठीक है, वो s लास्ट में नहीं रखते. जैसे man का plural men, food का feet, उनका जो vowel है अंदर का वो चेंज करके उन्हें plural बनाया गया. In such cases you are going to put apostrophe with s, ना, women's education, women men, women apostrophe s, women's education, ठीक है. Men's nature, तो already you have in such type of plural form already they are made plural without s. That's why you have to put apostrophe with s. आप में मुस्लिम नाउन में ऑलरेडी एस नहीं रखा हुआ है, इसलिए आप पहले एपोस्ट्रोफी एस रखेंगे. आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप ऐसे नहीं लिखेंगे. ऑलरेडी जो प्लूरल फॉर्म है वो विदाउट एस है, एमी, इसलिए आप केवल एपोस्ट्रोफी एस रखेंगे. उनको प्लूरल बनाकर एपोस्ट्रोफी एस रखने की जरूरत नहीं. ओके स्टूडेंट. एंड इन द सेम वे you should know that when noun were compound noun, as a compound noun, so you have to put apostrophe s with the last one, just like sister-in-law's house. So sister-in-laws, okay, just like this, see, commander-in-chief,
commander in chief. Up, when we are going to put apostrophe s, it will be put here chief's order. Commander in chief's order. Okay, student? So, in compound noun, whenever you are going to use apostrophe s, it will be kept with the last word of the compound noun, chief's order. My sister-in-law's house. Okay? My sister-in-law's order. You have to put apostrophe s with the word law, L-E-W. Okay? Law's house. So, student, कुछ important common phrases हैं, उनमें भी हम एपोस्ट्रॉफी एस के साथ ही उनको लर्न करते हैं. दे आर विद द एपोस्ट्रॉफी एस. फॉर कॉन्शियस सेक, फॉर जस्टिस सेक, फॉर गुडनेस सेक. ये सी ई से या एस से एंडिंग नाउन है, सी ई या एस से एंडिंग नाउन्स हैं. इनमें हम एपोस्ट्रॉफी का मार्क लगाते हैं और एस नहीं लगाते. ठीक है. और जो फ्रेजेस हैं जैसे एट हिज फिंगर्स एंड, एट आर्म्स लेंथ, एट वंस लिप्स, ये ऑलरेडी एपोस्ट्रॉफी यूज फ्रेजेस हैं. इनको हमें एपोस्ट्रॉफी हटा करके यूज नहीं करना चाहिए. स्टूडेंट, सो दिस इज क्लियर टू यू दैट you are not going to use apostrophe s with non-living things in without exceptional condition. जो exceptional conditions मैंने आपको explain की हैं, आप उन्हीं conditions में उनमें apostrophe s लगाएंगे. बेसिक रूल क्या है कि हम लिविंग बींग के साथ apostrophe s का यूज करते हैं, बट किन कंडीशन में हम नॉन लिविंग का यूज करते हैं. यू हैव टू कीप ऑल दीज रूल्स इन योर माइंड. नाउ you, I think the topic is very clear to you. You came to know about the meaning of the case and the 4 kinds of case, and where you are going to use your possessive case means apostrophe s, and with non-living beings you are going to use of. And what are the exceptions related with apostrophe s have been explained to you. I think it is clear. If you have any problem, you can ask the question related with sentence of noun in your group. I will make you clear. Your doubts will be removed. And as I have given you the exercise in my previous video lecture, the exercise 4a, from sentences from 21 to 34. So student, get ready to tally your answers. The exercise given on the page number 101. The sentence number 21. Don't make notice of his advices. So right answer is don't take a notice of his advice. Not advice, apostrophe s नहीं use होगा. Gymnastics are good for health. Gymnastics is good for health. He needs a pair of spectacle. You know, spectacle word is not used. The correct form of spectacle is spectacles. क्योंकि चश्मा का एक पार्ट आप यूज नहीं करते. ये नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है. सो द स्टूडेंट, जिम्नास्टिक इज गुड फॉर हेल्थ. ही नीड्स अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स. ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइसेस. रॉन्ग. ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइस. Lights travels faster than sounds. Wrong. Right answer is light travels faster than sound. S related with light and sound will be removed. जो लाइट के संग एस लगा है, साउंड के संग एस लगा है, दोनों रिमूव कर दिए जाएंगे. All the furnitures in my room are broken. Wrong. Right is all the furniture in my room is broken. The poet and scholar are dead. Wrong. The poet and scholar is dead because the person is same who is a poet. The person who is poet and the person who is scholar, they are one. एक ही व्यक्ति है जो पोएट भी है और स्कॉलर भी. दैट्स व्हाई हियर योर वर्ब विल बी ट्रांसफर्ड इनटू सिमिलर फॉर्म. द पोएट एंड स्कॉलर इज डेड. द कमिटी हैज अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन देयर ओन इंटरेस्ट. राइट आंसर इज द कमिटी हैज अराइव्ड एट दिस डिसीजन in its own interest. And the jury was divided in its opinion and could not agree as to the verdict. Right answer is the jury were divided. क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट्स हैं, मतलब जूरी में जितने मेंबर थे वो डिफरेंट, ईच यूनिट को अलग अलग कर दिया गया.
That's why we are going to use here plural verb. The jury were divided in their opinion, not its opinion, in their opinion, and could not agree as to verdict. Next one, our room's roof leaks badly in the rainy season. As you know that you are not going to use double possessive case, so the right answer will be the roof of our room. Yeah, the roof of our room leaks very badly in rainy season. I gave her a 10 rupees note. Not 10 rupees note. I gave her a 10 rupee note. I like kids' poetries, not poetries. I like kids' poems. And you can change it. I like kids' poetry. या तो आप पोइट्री लिखेंगे या पोइट्रीज नहीं होगा. I ate a lot of fishes, not fishes. I ate a lot of fish. So student, your topic related with noun, any syntax of noun is completed, and the rules will be given in your notes. That is enough. Okay. Have a nice day. In our next video lecture, we will start our new topic, our new story, An Astrologer's Tale. Till then, have a nice day. Good morning students. Students, our today's video lecture we would solve some numerical problems of the topic atomic structure. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं our first numerical problems. The energy of the electron in the first Bohr's orbit of the hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. Calculate the wavelength of the radiation emitted when electron makes a transition from third orbit to second orbit. तो ये आपका न्यूमेरिकल फर्स्ट है. आपको क्या करना है, देखिए एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस. तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको बताया था, फॉर्मूला डिराइव भी कराया था. एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर द हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस का फॉर्मूला हम लोगों ने जो जनरल फॉर्मूला था, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस की बात करें, जो सिंगल आयन स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर होते हैं, तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर m इज व्हाट, इट इज इक्वल टू माइनस z² RhC अपॉन n². ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था. टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, वो फॉर्मूला हमारा आया था माइनस z² RhC अपॉन n². ठीक है, बट ये हाइड्रोजन के लिए तो z की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर क्या 1. तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा यहाँ पर
z इक्वल टू 1, तो ये आपका आ जाएगा En इक्वल टू माइनस RHc अपॉन n, ये आ जाएगा। अब आपको क्या कहना है, देखिए यहाँ पर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट, किस ऑर्बिट की बात कर रहा है, फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट, तो n इक्वल टू 1 रख दीजिए, n की वैल्यू 1 के लिए बोल रहा है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का RHc अपॉन 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 स्क्वायर, ठीक है। E1 की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपका माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी E1 की वैल्यू है, इक्वल टू माइनस का आपका हो गया RHc, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, यानी RHc की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में इनडायरेक्टली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिसको नहीं पता था उसके लिए ये वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, पहले आप क्या करिए लर्न कर लीजिए, ठीक है। RHc की वैल्यू क्या होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड, तो रेडिएशन एमिटेड मतलब एमिट हो रहा है, एनर्जी एमिट हो रही है, किस फॉर्म में, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो वहां पर उसकी एक वेवलेंथ होगी, वो वेवलेंथ आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। और कहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है 3 to सेकेंड, तो मान लीजिए ये आपका ग्राउंड स्टेट है जो कि आपको पता है n इक्वल टू 1 होती है, और इसकी एनर्जी आपको पता है, इस स्टेट की एनर्जी आपको पता है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन में दे रखा था फर्स्ट ऑर्बिट की, फर्स्ट स्टेट की माइनस 13, ये फर्स्ट के बाद ये सेकेंड आएगा, देन थर्ड, देन फोर्थ, तो रेडिएशन जो हो रहा है वो हो रहा है 3 to सेकेंड, मतलब क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आपका n इक्वल टू थर्ड। जब आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड से कहाँ पर जाएगा, सेकेंड में, मतलब हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आएगा, तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसके पास थी यहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, रेडिएट करना पड़ेगा, और वो एनर्जी किस फॉर्म में रेडिएट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या है, वेवलेंथ निकालनी। तो यहाँ की एनर्जी आपकी क्या होगी, मान लीजिए यहाँ की एनर्जी क्या है, E3, यहाँ की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, मतलब किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E2 से, तो E3 और E2 का जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी वो क्या करेगा, रेडिएट कर देगा, E3 ज़्यादा होगी, E2 कम होगा, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो एनर्जी वो आपका क्या करेगा, रेडिएट करेगा, और उसी की वेवलेंथ आपको फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे आप इसकी वेवलेंथ, चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर हम E3 निकालते हैं, इसको निकालते हैं E3, तो E3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का हाइड्रोजन के लिए RHc अपॉन n स्क्वायर में क्या हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर, ठीक है। और RHc की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी, ये निकालिए हम लोग 13.6, ऐसे ही आप E2 निकाल लीजिए, E2 आपको हो जाएगा माइनस का RHc अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए E3 माइनस E2, तो E3 ये आपका माइनस का RHc 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, माइनस का ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस RHc अपॉन 2 का स्क्वायर ये आपका हो गया 4। RHc दोनों में कॉमन ले लीजिए या इसको सॉल्व कर लीजिए, RHc कॉमन लेके सॉल्व कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 9 अपॉन 36, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5/36 RHc, ये आ गया E3 माइनस E2। और RHc की वैल्यू आपको पता है, वो पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर चलिए हम इसको रफ कर देते हैं। हम लोगों ने एक्चुअली किया क्या, देखिए इस स्टेट की एनर्जी क्या होगी, इस स्टेट की एनर्जी क्या होगी, अब हम इनका डिफरेंस निकालें, क्यों, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आएगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसके पास इस स्टेट में ज़्यादा एनर्जी है, इसकी कम है, तो जो डिफरेंस है वो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट कर देगा और वापस इस एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। तो डिफरेंस निकाल लिया हमने ये, अब ये हमारा आ गया E3 माइनस E2 इक्वल टू E3 माइनस E2 इक्वल टू 5/36, RHc की वैल्यू आपकी क्या है 13.6, तो इंटू क्या हो गया आपका 13.6, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी पूरी किसमें हो गई है, EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये E3 माइनस जो E2 था, आपको पता है एनर्जी जो रेडिएट हुई वो लाइट एनर्जी एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट है, यानी फोटोन के फॉर्म में, और फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है h न्यू, तो E3 माइनस E2 किसके इक्वल हो जाएगा, h न्यू, तो h न्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 × 13.6 अपॉन 36 इन EV, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये हमने फॉर्मूला रखा है h × न्यू, तो अगर आप h की वैल्यू यहाँ पर यूज करते हैं
6.6 10 की पावर -34, तो आपको ये वैल्यू भी किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ये वैल्यू आपको किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ये आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी उसमें जूल। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, hc बाई लैम्डा, क्या हो गया, hc बाई लैम्डा इक्वल टू 5 × 13.6 अपॉन 36, ये क्या है EV। और आपको पता है, हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि hc की वैल्यू जब एनर्जी EV में हो तो hc की वैल्यू होती है 12375, क्या होती है 12375, डायरेक्टली रख दीजिए लैम्डा क्योंकि वो EV में है एनर्जी, ये आपका हो जाएगा 5 × 13.6 अपॉन 36। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा कि क्या वेवलेंथ होगी उस रेडिएशन की। सॉल्व करते हैं तो लैम्डा इक्वल टू आपका हो जाएगा 36 × 12375 अपॉन 5 × 13.6। ठीक है, तो यहाँ से 5 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 5 से कैंसिल होकर जाएगी, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25, तो 2475 वैल्यू आ रही है। और इसको हम लोग 4 से 4 से काट दीजिए, 4 9 = 4 3 = 12, 4 4 = 16, ये आ गया 3.4। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 9 × 2475 अपॉन 3.4। ठीक है, अब इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका मल्टी करिए, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, इसका मल्टी करने से डिवाइड कर दीजिए, तो इसको चाहो तो 2 से कैंसिल कर दो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 3 = 2 7 = 2 5 = अब ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ये आ गई आपकी 70। 9 का मल्टी करिए, से आप इसको डिवाइड करिए, तो चलिए 17 से डिवाइड कर देते हैं, 1111375, 17 7 = 119, तो ये 6 टाइम जाएगा, 17 6 = 102, यहाँ पर आपका क्या गया 9। ठीक है, इसके बाद 3 आप यहाँ पर ले लीजिए, 5 पर जाएगा 85, क्या आ गया आपका 8। ठीक है, 7 ले लीजिए, फिर 5 आ जाएगा ये 85, 2, उसके बाद आपका 5, तो ये 1 टाइम्स, तो ये आपका आंसर आ रहा है 6551। अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर क्या आ गया 6551। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 6551, इसमें आएगा एंगस्ट्रॉम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको रन कर देते हैं। देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर इसी क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। हमारे पास लैम्डा का डायरेक्टली फॉर्मूला था 1/λ, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो ये आपका था R 1/N1² माइनस 1/N2²। ठीक है, N1 और N2 लोअर स्टेट और हायर स्टेट, तो यहाँ पर 3 से 2 पे हो रहा है, तो N2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, N1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, R आपका कांस्टेंट होता है, वैल्यू आपको पता है 1.01 10 की पावर 7, तो लैम्डा यहाँ से आप निकाल सकते थे। ठीक है, इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन
of hydrogen atom is, ionization potential of hydrogen atom is 13.6 volt, is 13.6 volt, is 13.6 volt. Find out wavelength of, find out wavelength of, find out wavelength of H beta, find out wavelength of H beta line of Balmer, H beta line of Balmer, line of Balmer. Second point, second question, shortest wavelength of Lyman series, shortest wavelength of Lyman series, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको गिवन है, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द मिनिमम पोटेंशियल which is required for the electron to accelerate so that it can ionize the hydrogen atom, is called ionization potential of hydrogen atom। तो ये आपको वैल्यू 13.6 वोल्ट दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ द एच बीटा लाइन ऑफ द बामर, तो पहली सीरीज आपकी लाइमन है, सेकंड सीरीज आपकी क्या है? बामर, ठीक है। तो बामर के लिए अगर हम वेवलेंथ का फॉर्मूला देखें तो ये होता है 1/λ इक्वल टू हाइड्रोजन के लिए जेड तो होता है r 1/, ये जनरल फॉर्मूला हम लिख रहे हैं n1² - 1/n2², ठीक है। अब इसको जरा सा डिवीजन मान लीजिए आप, यहाँ पर n1 ये मतलब n = 1, फिर आपका 2, फिर 3, फिर आपका 4, ठीक है। तो पहली सीरीज आपकी लाइमन की रेडिएशन की, तो पहली सीरीज की रेडिएशन कहाँ से स्टार्ट होगी? रेडिएशन पहली हाईएस्ट स्टेट क्या है? सेकंड से 1, पहला रेडिएशन, पहला ट्रांजिशन सेकंड से 1 रेडिएशन का, फिर थर्ड से 1। तो जो भी ट्रांजिशन होंगे वो सारे किस लेवल पे होने हैं? फर्स्ट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। तो n1 की वैल्यू फिक्स हो गई 1, तो ये आपका लाइमन का फॉर्मूला हो गया r 1/1² - 1/n2²। ये फार्मूला किस सीरीज के लिए है? ये फार्मूला आपका है लाइमन के लिए, इसके लिए है लाइमन सीरीज के लिए, ठीक है। तो चलिए लाइमन का पहले सॉल्व कर लेते हैं। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज कैसे निकालेंगे? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में, जैसे कि आपको यहाँ पर पता है पहला जो ट्रांजिशन है वो ये है, और जो लास्ट ट्रांजिशन होगा वो होगा आपका आयनाइजेशन वाले लेवल से ग्राउंड लेवल। इन दोनों में सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर रेडिएट होगी? किस ट्रांजिशन में होगी? इस ट्रांजिशन में, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रेडिएट, क्यों? क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा यहीं पर है, गैप, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। और आपको पता है एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन कैसा होता है? E = क्या होता है आपका? hc/λ, ठीक है। E और लैम्डा का रिलेशन आपका क्या है? उल्टा इनवर्स है, ये दोनों तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं, तो कैसा रिलेशन आ रहा है? इनवर्स। तो यहाँ पर यानी कि एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी? सबसे कम होगी। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो ये आपका फर्स्ट ट्रांजिशन होगा कि लास्ट होगा? ये आपका लास्ट ट्रांजिशन। ये आपको खुद से समझना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और ये किसी भी सीरीज का पूछा जा सकता है, लाइमन का, बामर का, या आपका ब्रैकेट पेपर, तो ये आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए। तो यानी कि आपका जो सेकंड पार्ट है उसके लिए आपको पता चल गया n1 तो आपका फिक्स है, ये 1 है, और ये जो आपका n2 है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 1/r 1/1² - 1/∞ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा 1/λ इक्वल टू, सिंपल ये हो जाएगा आपकी वैल्यू 0 और 1/1 1, यानी बचेगा r, तो लैम्डा इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/r, यानी रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू का इनवर्स। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किस सीरीज की मिल जाएगी? लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको आ जाएगी लैम्डा इक्वल टू 1/r, और r की वैल्यू आपको क्या दी है इसमें? 1.09 × 10⁷, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व होके आपकी आ रही है 910 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा आपका आ जाएगा 910 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आंसर आएगा 910 एंगस्ट्रॉम, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या था, वेवलेंथ ऑफ द एच बीटा। तो एच बीटा लाइन बामर की कौन सा ट्रांजिशन होता है? देखिए बामर में मैंने आपको बताया था एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा और एच डेल्टा। तो बामर है किस नंबर का? सेकंड का। तो बामर के लिए पहला ट्रांजिशन होगा यहाँ पे आपका 3 से लेकर 2 रेडिएशन की बात करें। उसके बाद आपका 4 से 2, फिर 5 से एन सो ऑन। तो पहला ट्रांजिशन आपका बामर का है 3 से 2, इसी को बोलते हैं एच अल्फा। फिर आपका सेकंड जो वो होता है ट्रांजिशन, वो आपका 3 से पहला 3 से 2, फिर आपका 4 से 2, ये आपका 4 है, ठीक है। तो 4 से 2, ये आपका 3 से 2, तो ये आपका है एच बीटा। तो एच बीटा आपको समझना पड़ेगा क्या है। एच बीटा आपको क्या है? 4 से 2, यानी n2 आपको पता चल गया 4 है और आपका n1 तो फिक्स है 2 है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे फॉर्मूले में, ठीक है। n2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी क्या? 4 और n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, ठीक है। तो 1/λ फॉर्मूला ये रहेगा r ब्रैकेट में 1/n1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ये आप सॉल्व कर देंगे, इससे r की वैल्यू आपको कांस्टेंट पता है 1.097 करके इससे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। किसका आ जाएगा? लैम्डा का। किसके लिए? एच बीटा लाइन की बामर सीरीज, ठीक है। और ये आंसर अप्रॉक्सीमेटली आपका आएगा, ये आंसर आपका आ रहा है 4853। तो उसको सॉल्व करिएगा, इसी के लगभग अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 4853 इंग्लिश, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी। अब एक न्यूमेरिकल और डिस्कस कर लेते हैं। इसके न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करिए। आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता है, आप मुझे स्कूल टाइम पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जब भी मैं फ्री होऊंगा आपको मैं उसका रिप्लाई क्वेश्चन का कर दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका? एनर्जीज ऑफ 2 एनर्जी लेवल्स। क्वेश्चन आपका है थर्ड, एनर्जी ऑफ 2 एनर्जी levels, 2 energies level are क्या है एनर्जीज? 5.36 माइनस का 3.4 एंड 1.5, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अकर्स फ्रॉम द हायर टू लोअर लेवल, if the electron transfer occurs from higher to lower level, higher to lower level, what will be the wavelength? What will be the wavelength? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए एनर्जीज ऑफ 2 एनर्जी लेवल्स, यहाँ पे ध्यान देखिए एनर्जी लेवल्स की आपको एनर्जी दे रखी है, जैसे ये पहला लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो इसकी या किसी की भी इसमें क्वांटम नंबर या आपको ऑर्बिट नहीं पता है तो आप मान लीजिए वो एनर्जीज। अब इन दोनों में हाइयर एनर्जी कौन सी? माइनस का 1.5 है या माइनस का 3.4 है, या आपका माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइयर है। तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो हो रहा है वो हो रहा है फ्रॉम हाइयर टू लोअर। इसका मतलब ये रेडिएशन है या ये अब्जॉर्प्शन? हाइयर टू लोअर यानी इट इज रेडिएशन ट्रांजिशन, ठीक है। तो आपको निकालना है एनर्जी का डिफरेंस, कितनी एनर्जी रेडिएट होगी। तो डेल्टा ये हमेशा हाइयर टू लोअर होता है, तो माइनस का 1.5 ये हाइयर वैल्यू, इसको माइनस करना है लोअर वैल्यू में 3.4 डिफरेंस कर देना है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 3.4 माइनस 1.5, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.9। क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जब वो
इस लेवल से इस लेवल में आएगा जिसकी एनर्जी आती है माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जिसकी एनर्जी है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करेगा तो इस एनर्जी को रेडिएट करेगा 1.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसकी वेवलेंथ निकालनी है तो आपको पता है एनर्जी जो है hc/λ, फोटॉन की अगर हम बात करें ये hc/λ, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये वैल्यू हो जाएगी 12375 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1.9। ध्यान रखिएगा। अब ये लैम्डा जो आएगा आंसर वो आपको पता है किसमें आएगा, लैम्डा का आंसर किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो ये आपका लैम्डा इक्वल टू सीधे हो जाएगा 12375 अपॉन 1.9, 1 घटाइए 0 बढ़ाइए और इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका 1912375 सॉल्व कर देते हैं 19 का। सिक्स तो ये आपका 9 6 जा 5 और ये आपका 11, ठीक है। ये आपका आ गया कितना 9 और ये 7 5 95, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका आ जाएगा 2 और ये आपका 5, 19 1 का 19, 6 0 3 6513 एंगस्ट्रॉम। डेसिमल में नहीं निकाला है, 6.6513 आपका आंसर इसका आ गया, ठीक है। So I think you have cleared all the numerical problems and do more numerical problems for this particular chapter and ask me, WhatsApp me and I will resolve your problem. So thank you students. Hello student, welcome to SUI online chemistry classes for class 12. Let's continue the chapter that is the nitrogen family. In previous video I was explaining you the physical properties of that group. Physical properties like electronic configuration, ionization energy, electronegativity, metallic and non-metallic character, catenation property, valency, etc. Now today I am going to start chemical properties of that group. First of all, nitrogen family contain nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Okay. In this group, nitrogen show some abnormal behavior than the rest of the element because, for example, nitrogen exists in their gaseous state while rest of the element exists in their solid form. First abnormal behavior. Second one is nitrogen only show trivalency due to the lack of d orbital. On the other hand, rest of the elements show tetravalency and pentavalency also. Because इसका मैंने क्वेश्चन भी आपको कराया था, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म NCl5 whereas phosphorus form PCl3 as well as PCl5. तो इसका आंसर भी क्या था, because due to the absence of d orbital in nitrogen it doesn't form NCl5, it only form NCl3, whereas due to the presence of p orbital phosphorus formed PCl3 as well as PCl5. Okay, and then another abnormal behavior is nitrogen have greater ionization energy than the rest of the element. इसका आंसर क्या था, because nitrogen have a stable half-filled p3 electronic configuration and half-filled and full-filled orbitals are more stable than the other orbitals. क्योंकि नाइट्रोजन के पास half-filled p orbital है, so it is की जो ionization energy है बच्चों, what is ionization energy? Ionization energy is that energy which is required to remove an electron present in outermost shell of an isolated gaseous atom. किसी isolated gaseous atom के outermost shell में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उसको रिमूव करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। बिकॉज नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 है, इट हैव p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका बैलेंस शेल में p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो एक हाफ फिल्ड की कंडीशन है। इसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इज ग्रेटर देन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। ओके, तो ये सारे जो इसके एब्नॉर्मल बिहेवियर है इट इज रिलेटेड टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू हैलाइड्स। Halides of this group, student, this group
कलेक्टिवली भी मैंने कलेक्टिवली इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, एम वेयर एम मे बी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड दिस वन. ओके, इट फॉर्म ट्राइहैलाइड एंड एज वेल एज पेंटाहैलाइड एक्सेप्ट नाइट्रोजन. सारे जो जितने भी ये एलिमेंट हैं वो ट्राइहैलाइड एंड पेंटाहैलाइड बना सकते हैं. पेंटाहैलाइड के केस में नाइट्रोजन नहीं आता है. ओके, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल दीज हैलाइड फॉर्म ट्राइहैलाइड्स एज वेल एज पेंटाहैलाइड. और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिकॉज हैलाइड्स है तो MX3 और MX5. इन MX5 नाइट्रोजन का केस नहीं बनता है ड्यू टू द लैक ऑफ डी ऑर्बिटल, बिकॉज इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है. अभी मैंने एक्सप्लेन किया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाता है. यहाँ देखिए फटाफट से, नाइट्रोजन हैव 1s2 2s2 2p3. इसका बैलेंस शेप 2s2 2p3 है. 2d एग्जिस्ट नहीं करता है. यहाँ पे 2s2 बनाएंगे आप, 2p3 बनाएंगे आप, तो यहाँ पे इसका जो एक्साइट स्टेट कराएंगे हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है. यहाँ पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड है. 3 सपोज हमारे पास हेलोजन एटम आया, यहाँ पे एक इसके साथ बॉन्डिंग की, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और कोवेलेंट बॉन्ड बना के ट्राइवेलेंसी शो कर देगा. ओके, H आया NH3 के केस में, तो यहाँ पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड H के साथ बना के अपना ट्राइवेलेंसी ये शो करेगा. पेंटावेलेंट नहीं होता है बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ डी ऑर्बिटल. तो ये पेंटाहैलाइड्स भी नहीं बनाता है, ओनली इट फॉर्म ट्राइहैलाइड्स. ओके, इन द केस जो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन फॉर्म NF3, NCl3, NBr3 and Ni3. Student, these elements react directly with halogens to form halides, trihalides as well as pentahalides. Okay, लेकिन in the case of nitrogen, these two are unstable because इसके रीजन क्या है बच्चों, ये दोनों तो ये तीनों एक्सप्लोसिव इन नेचर होते हैं. only NF3 is stable. Okay, एक्सप्लोसिव इन नेचर होते हैं as well as NBr3 Ni3 is unstable in nature. ये अनस्टेबल कैसे होंगे, बिकॉज स्टूडेंट आपका कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, कंपाउंड फॉर्म होता है जब दो एटम्स अप्रोच करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं. बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से फॉर्म होता है. हाइब्रिडाइजेशन में जो और कैसे होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है. जब ऑर्बिटल का साइज मिसमैच होता है तो बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है. अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे है, अगर हम हेलोजन की बात करें तो हेलोजन यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली आ जाएगी, ऑक्सीजन फैमिली आ जाएगी. देन यहाँ पे आपका हेलोजन फैमिली आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन. तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन और Br की, नाइट्रोजन यहाँ पे प्लेस है और Br यहाँ पर है, आयोडीन यहाँ पर है, तो यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस ऑफ एटॉमिक साइज. यहाँ पे नाइट्रोजन एंड Br और I के केस में डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक एटम आपका इतना छोटा विच इज लिंक्ड विद दिस. सो ये जो बॉन्ड है between two atoms in which one is smaller and other one is bigger. Okay, then ये bond जो होगा वो कैसा होगा, bond is become very weak. और जो वीक बॉन्ड होते हैं उनको हमने स्लाइट सी जरा सी एनर्जी दी हो तो कैसे हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे. सो अगर हम नाइट्रोजन की बात की तो नाइट्रोजन में ओनली NF3 is stable, then the NCl3, NBr3, Ni3 due to the mismatching atomic size. ओके, एटॉमिक साइज में इतना जो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ये दोनों कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं. उसमें भी Ni3 ज़्यादा स्टेबल अनस्टेबल होगा एज कम्पेयर टू NBr3. और क्या है हैलाइड्स के बारे में बात कर सकते हैं बच्चों. हैलाइड्स जो होते हैं sp3 आप इन नेचर होते हैं. और बच्चों ये लुईस बेस के जैसे काम करते हैं. कैसे लुईस बेस के जैसे काम करेंगे, बिकॉज नाइट्रोजन हैव वन लोन पेयर प्रेजेंट इन इट. नाइट्रोजन क्या है, लोन पेयर इसके ऊपर प्रेजेंट है. अगर बिकॉज ये सारे अनस्टेबल हैं तो एक्सप्लोसिव भी है कि हम बात नहीं करते हैं. नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है एंड इट इज कैपेबल टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन. एक कैपेबल है अपने इलेक्ट्रॉन को देने के लिए. अगर हम NF3 और NCl3 की बात करें तो ये बोथ आर कैपेबल टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लुईस बेस इन नेचर, बिकॉज लुईस बेस आर दैट कंपाउंड व्हिच can able to donate their electron to another species. Okay, लुईस बेस क्या होते हैं, जो किसी दूसरे सब्सटेंस को, दूसरे कंपाउंड को अपना लोन पेयर बोलो या मोलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन पेयर दे दें, डोनेट करते हैं, दैट आर लुईस बेस. और जो एक्सेप्ट कर लें वो लुईस एसिड. तो यहाँ पर नाइट्रोजन और इसके केस में ये क्या है, लुईस बेस की तरह वर्क करते हैं, बिकॉज दिस
are capable to donate their electron. But बच्चों एक यहाँ पर अगर हम दोनों में बात करें कि which one is more लुईस बेसिक इन नेचर, कौन तो जो जितनी जल्दी से डोनेट कर देगा वो उतना अच्छा लुईस बेसिक नेचर होगा। ओके, सो यहाँ पे बच्चों देखो नाइट्रोजन इज लिंक्ड विद 3F, यहाँ पे F से ये जुड़ा हुआ है और यहाँ पे इसका ये लूप पेयर प्रेजेंट है। ओके, तो ये F क्या है? F इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। F की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो F क्या करेगा? F ये जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, अपनी तरफ जब अट्रैक्ट कर लेगा तो N feels slightly positive character in it। नाइट्रोजन पर कैसा करेक्टर आ जाएगा? सम पॉजिटिव करेक्टर, बिकॉज more electronegative fluorine atom attract the electron between the nitrogen and F। नाइट्रोजन और F के बीच में जो बॉन्ड बना है उसमें जो टू इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट करेगा? वो अट्रैक्टेड हो जाएंगे टुवर्ड्स फ्लोरीन। सो नाइट्रोजन फील्स सम पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर आ जाएगा। नाइट्रोजन इटसेल्फ इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो खुद भी ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन यहाँ के केस में फील कर रहा है पार्शियल पॉजिटिव अपने ऊपर, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। ओके, सो लुईस बेसिसिटी इन दोनों के केस में बात करें तो NF3 का जो लुईस बेसिसिटी है वो कम है, बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा करेक्टर आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर आ जाता है। अगर हम और की बात करें, लाइक हमने ये PCl3 की बात करनी या AsH3 या Cl3 की बात कर दो, इस केस में बच्चों ये लुईस एसिड का भी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल होता है और वो होता है वैकेंट। ओके, phosphorus, arsenic and antimony have vacant d orbital। vacant d orbitals की वजह से these are capable to accept electron pair। ये कैपेबल है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सके? एक्सेप्ट कर सकें। तो ये बच्चों कैसे हो जाएंगे? लुईस एसिड नेचर। these are information about the halides। कैसे halides क्या है? तो 2 टाइप के halides बनाते हैं, NH3 टाइप and X5 टाइप। NH5 में नाइट्रोजन का नाम नहीं है बिकॉज नाइट्रोजन का absence ऑफ d ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के पास तो d ऑर्बिटल नहीं होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन के जो Ni3 और Nbr3 है वो these two are unstable बिकॉज एटॉमिक जो इनका साइज है वो मिसमैच साइज है। ओके, फिर हम लोगों ने क्या इसके आगे इंफॉर्मेशन दी कि जो ये NF3 है या NCl3 है ये लुईस बेस का वर्क कर सकते हैं बिकॉज दीज आर कैपेबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। बट NF3 के केस में हमने ये भी सीखा कि ये उतना अच्छा लुईस बेस नहीं होगा बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन एटम attract the electron present in between the nitrogen and fluorine, and that's why nitrogen contains some partial positive character in it। तो जब नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। ऑन दी अदर हैंड P halides of phosphorus and arsenic also act as a Lewis acid because in the presence of d orbital and vacant d orbital, these are the capable to take electron। ये कैपेबल हैं इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, इस वजह से ये लुईस एसिड का भी वर्क करते हैं। आगे बात समझ में? ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ेंगे हाइड्राइड। इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं हाइड्राइड में, where M stands for nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth। MH3 type के हाइड्राइड बनाते हैं। The element of this group form MH3 type hydride like NH3, like NH3, like PH3, like ASH3 and SBH3। ओके, इस टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं। ओके, सबसे पहले इनकी बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की। जैसे जैसे हम ग्रुप में अप टू डाउन आ रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। मतलब हमको अमोनिया को ब्रेक करने में थर्मल, जब इसको इज गोइंग टू बी हीटेड, इसको हम हीट देंगे तो एज कंपेयर टू एंटीमनी हाइड्राइड एंड आर्सेनिक हाइड्राइड ये स्टेबल रहेगा और इसका वही बॉन्ड वीक बॉन्ड का ही रीजन है बच्चों कि जब दो एटम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के केस में अगर हम बात करें तो दोनों के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके,
और यहाँ पे एंटीमनी बहुत बड़ा है, आर्सेनिक बड़ा है, एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन छोटा सा है, तो बीच का जो बॉन्ड बन रहा है वो उतना वीक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग इन द केस ऑफ अमोनिया है। तो जब वीक बॉन्ड है, जरा सा हम हीट देंगे तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, अनस्टेबल है तो ब्रेक हो जाएगा। अच्छे से दोनों एटम क्योंकि बराबर साइज के नहीं है, होल्ड नहीं कर पा रहे तो ब्रेक हो जाएगा। ये बात समझ में है? तो थर्मल स्टेबिलिटी यहीं से याद कर लीजिए, जब हम ग्रुप में अप टू डाउन ऐसे तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि NH3 टू HBS की तरफ मूव कर रहे हैं, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। थर्मल टेम्परेचर की प्रेजेंस में जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। अब यहीं से मैं आपको समझाने जा रही हूँ रिड्यूसिंग नेचर। These all are act as a reducing nature. Reductant are those substances which reduce others. जो दूसरों को H देकर क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाए। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है और ये टूट करके क्या देंगे, हाइड्रोजन देंगे। तो थर्मल स्टेबिलिटी अगर इस तरीके से इधर से आने पे रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा होगा बच्चों? रिडक्टेंट आर दोज सब्सटेंस व्हिच गिव H टू अदर्स। वो जो दूसरों को H दें, जब टूटेंगे तभी तो H देंगे। तो रिड्यूसिंग नेचर कैसा होगा, इंक्रीज होगा। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी और रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा व्हेन वी मूव अमोनिया टू SbH3। एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी यहाँ पे ये है NH3 भी क्या है, NH3 यहाँ पे आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट ड्यू टू द लोन पेयर, ये हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, द एंगल जो होना चाहिए 190 डिग्री 28 मिनट गेट रिड्यूस टू 107 डिग्री। ओके, 160 डिग्री पे रिड्यूस हो जाता है। किसकी वजह से रिड्यूस हो जाता है? ड्यू टू द रिपल्शन इन बिटवीन द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर। ये जो बॉन्ड पेयर में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, जितना स्ट्रेन कम होगा उतना ही मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल इन नेचर होगा। तो स्ट्रेन, तनाव को कम करने के लिए 109 डिग्री का एंगल को रिड्यूस करता हुआ कितने पास है, 107। वाटर के केस में बच्चों और ज़्यादा ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन, क्योंकि ऑक्सीजन हैव 2 लोन पेयर्स, एंड ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट गेट रिड्यूस टू 105 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, एंगल इसका 107 होता है और बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है इसका। बाकी ये लुईस बेस की तरह भी वर्क करते हैं बिकॉज इट इज कैपेबल टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन। सो आज हम लोगों ने हाइड्राइड और हैलाइड पढ़ा है। नेक्स्ट उसमें हम लोग नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।